Zabardast Talio say, I want to invite that great gentleman, our mentor, our guru, Mr. Prem Kumar, the Black Diamond Ambassador of Indus Viva and the DSC member of Indus Viva, with all your thundering round of applause. Come on, with a big round of applause. Good morning. Welcome, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, friends. Good morning, Praveen ji. Can you hear me? Yes, sir. Absolutely. Wonderful. Okay. Namaskar सभी लोगों को. How is the sunrise? Awesome. It's awesome. Are you in Assam? No, I'm not in Assam. This is Arunachal? Are you in Arunachal Pradesh? No. बादल कैसे दिख रहा है आज? It's a very beautiful, bright day. Beautiful. Amazing. Amazing. Okay. Good morning, everybody, and नमस्कार सभी लोगों को. और आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, warm welcome to this program. And कभी-कभी लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस के अंदर हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाता है जो मतलब जिसका आंसर मतलब सही उत्तर नहीं मिलता है. तो यूजुअली क्या होता है, आपको जाना पड़ता है अपने अपलाइन स्टार के पास, स्टार 250 के पास, स्टार 500 के पास, या कभी कभी स्टार 1000 रूबी के पास. लेकिन पहली बार एक मंच हम लोगों ने तैयार किया यहाँ पर वेबेथॉन में, जिसके अंदर आप डायरेक्टली अपलाइन ब्लैक डायमंड एम्बेसडर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और वो जो क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं उसका आंसर भी आपको यहीं पर लाइव में दिया जाएगा. सो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. एक्चुअली मुझे लगता है कि जब मैं छोटा लीडर था इस बिजनेस के अंदर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, छोटा मतलब रैंक, व्हेन आई वाज इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, अगर ऐसा मुझे मौका मिलता तो बहुत अच्छा होता, राइट? So, but I think today you people are very lucky because यहाँ पर जो भी questions आप पूछने वाले हैं, everything is going to be answered. So, सवाल होंगे आपके और जवाब होंगे हमारे, right? So, come with questions, go with answers. So that is the topic for the day. So मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर मतलब अलग-अलग किस्म के questions आपके माइंड में चल रहा होगा. जैसे ये मतलब वो ऋतिक रोशन का क्वेश्चन, एक गाना है ना लक्ष्य में, मैं ऐसा क्यों हूं, राइट? तो इसी प्रकार कुछ लोगों को लगता है कि इंडस वीवा कंपनी में ये जो चीज है ये ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्यों है, और स्टार 250 बनने के लिए लेफ्ट में एक स्टार, राइट में एक स्टार क्यों बनाना पड़ता है. मतलब इस प्रकार के कॉम्पनसेशन प्लान रिलेटेड, इनकम रिलेटेड, process related, vibrant viva related, product related. Product का मतलब don't go into the ingredients of the product. उसके लिए आपको KYP में जाना पड़ेगा या डॉक्टर बालू को आप सुनना पड़ेगा लाइव में. But this is more to the process, business development questions. Okay, so more to pertaining to the business, more related to the business questions होनी चाहिए यहाँ पर. So that's what is. So if you ask the questions, it's like the magic lamp. ओके आपको अपनी दिमाग जो है उसको तेज रखना होगा. इसको जब आप रब करेंगे so Genie will come out and give you the answer. So let's get ready for today's questions and let's discover the amazing answers for the questions what we have. So Praveen ji, you can why is that Arjun Virahe? Why is that? Arjun is asking why is that? Why is that? Why is that? Arjun, what do you mean by that? No, I asked a question actually. People. After that, I posted it. Okay. Yeah, people. I mean, Arjun has a question actually in the beginning itself. अच्छा सर, हम जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं वो इंटरेस्टेड तो होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई आखिर बिजनेस में काम क्या करना पड़ेगा. तो सर इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या दे. Okay, good. I think Amin Ur Islam is asking that question. Praveen ji, you can keep that in the pipeline. Yeah. Anyway, we will start answering questions one by one, and all our hosts will be able to pick up one question. And Praveen ji, you can represent all our hosts, and you can आप आज सवाल कर सकते हैं. चलिए आज की जो सवाल और जवाब के अंदर आज हम लोग जाएंगे. So, right, Praveen ji, you can start off. आप शुरू कर सकते हैं Praveen ji. I am ready. That was one question actually, and a few people, जैसे कि Arjun started with this question. What he was asking is, after earning 1 lakh rupees per month in Indus Viva, the leaders will be relaxed totally. Why is that? When they reach 1 lakh per month. So is it Arjun's question, Arjun? Yes, Sir, the basic question is, normally when people get satisfied with very soon in Indus Viva, they can earn 50,000, 1 lakh or whatever income. So once they get that good incomes, they get relaxed. So why is that happen? So what can we do? That is that was the question. Okay. Let's start with that question. That sounds interesting, Praveen ji. Yes, sir.
अर्जुन जी कहते हैं कि लोग जब 25,000, 50,000, 1 लाख इंडस्ट्री में कमा लेते हैं, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं. Monthly, monthly, sir. Monthly, when they're earning. Monthly 1 lakh. That's what. जो भी है, monthly or weekly, whatever. The point is not about the income. The point is about the attitude. So, let me quote Dr. APJ Abdul Kalam. Low thinking is a crime. Low thinking is a crime. People are usually satisfied with a small income and a small achievement. This is the problem with especially the middle class people. They are targeting small, achieving it, and becoming satisfied, which is actually such a painful thing. For example, अगर मैं अपना इनकम जो है वो 20,000, 25,000 मंथली ये लेवल सोचूंगा, मेरी जो टीम के अंदर जब लोग आएंगे उनका हाल क्या हो सकता है. So this is actually a biggest problem. So this is basically coming the root of the problem. इसकी जो जड़ है ये कहां से शुरू होता है? Low thinking or a small thinking. This is what is the problem. Why people are like this. So they need to attend RTP और RTP के अंदर मिडिल क्लास मेंटालिटी को कैसे तोड़ना है और मिलियनर मेंटालिटी कैसे अपनाना है. This is going to be taught. So that is the आंसर फॉर अर्जुन. अर्जुन, अगर कोई इस प्रकार है तो उनको ड्रीम्स नहीं है शायद. We have to fill them with the dreams. For example, even today it's 7:10, 7:15 now. It is 7:16, and आज भी after earning a very good income from Indus Viva, yesterday, कल और परसों 2 दिन, I spoke for almost 6 hours in the RTP. Yesterday night, कल रात को मेरा मतलब कल और परसों 2 दिन RTP, Tuesday and Wednesday, and yesterday night was my KYP. I spoke for almost 90 minutes in Kannada. I think all the people from Karnataka know this. And उसके बाद आज सुबह फिर उठ के मैं 7 बजे रेडी हो गया. This is what is my way of looking at it. It's not, my income is now not the driving force. Income is already stabilized. My driving force is मेरे साथ जितने भी लोग आए हैं, I want to use the digital media, digital माध्यम जो है उसको यूज करके मैं मैक्सिमम लोगों को पहुंचना चाहता हूं, मैक्सिमम लोगों को देना चाहता हूं, मैक्सिमम लोगों को सक्सेसफुल देखना चाहता हूं, सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहता हूं. दैट इज द रीजन ऑलरेडी आई एम 7 o'clock. मैं उठ के तैयार होकर अपना बेसिक योगा एक्सरसाइज करके स्नान मेरा हो गया. आई गॉट रेडी. आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप. सो दिस इज हाउ आई डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप. मैं लीडरशिप के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हमेशा मैं लोगों को दिखाता हूं व्हाट इज लीडरशिप, बिकॉज पीपल विल डू व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से. राइट. सो अगर किसी का प्रॉब्लम है, somebody is happy with small income, they are evil. Vibrant Viva baseline कहता है don't be evil, don't be evil. अगर कोई इंसान छोटी चीजों से अगर अपनी जिंदगी में खुश है, 25,000, 50,000 मंथली से खुश है, you are an evil for your team. आपके टीम का जो ग्रोथ है वो आपके वजह से नहीं हो रहा है. सो दिस काइंड ऑफ पीपल शुड बी इमीडिएटली सेंट फॉर RTP नॉन स्टॉप फॉर 3 months. 3 महीने आपको डिजिटल RTP में बैठना होगा. So this is the answer for that. अगर ऐसा नहीं हो सकता है, so they will become a problem for the team to grow. जब मैं अपना इनकम छोटा रखूंगा, मेरे पीछे वाले जो लोग हैं उससे छोटा सोचेंगे और धीरे 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 team will die. The team will die. Vishal is sharing a screen. Okay, small aim is a crime. Have great aim. That's what Dr. APJ says. Thank you, Vishal ji, for sharing that. A wonderful quote from a missile man, the Bharat Ratna of this great country, right? Okay, so Praveen ji, next question. बहुत सारे questions आ रहे हैं यहाँ पर. Best questions आप select करिए Praveen ji, ताकि maximum लोगों को उसका benefit पहुंचे. Also, sir, I would like to add one more point, because due to the lack of passion, probably they won't be that much serious. The passion is not there in the business. Exactly. Okay, sir. And one more thing, one more question is like the second question was, sir, हम जब भी किसी को प्लान दिखाता है तो वो इंटरेस्टेड तो होता है, लेकिन वो ये क्वेश्चन करता है कि भाई आखिर बिजनेस में काम किया करना पड़ेगा. Okay, so for example, बिजनेस में क्या काम करना पड़ेगा? हमको यहाँ पर एक बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा.
हमें यहां पर बिजनेस बिल्ड करना पड़ता है. वेरी सिंपल. ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं बीच में. एडवर्टाइजमेंट की जाती है, एडवर्टाइजमेंट, सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट्स. सो इंडस वीवा में सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट्स को हटाना है, मिडिलमैन को हटाना है, और वो काम बेसिकली हमारा टेक्निकल का नाम जो है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर. सो वी आर द distributor of our amazing product from the manufacturer. Indus Viva is the manufacturer to the customer. So this distribution, ये काम हमें करना पड़ेगा. प्रवीण जी, यही काम करना पड़ेगा हमको. Reach the product from the manufacturer to the distributor and drink it, feel it, share it, and distribute it and become successful entrepreneurs, multi-millionaires. So this यही काम हमें करना पड़ेगा, राइट? जिन्होंने भी वो सवाल पूछा उनके लिए ये काफी होगा. अगर ये क्लियर नहीं है तो भाई साहब, आप स्टार 250 बनेंगे तो आरटीपी में आएंगे, वहां पर आपको साफ साफ बताया जाएगा आपका काम क्या है, राइट? ओके, नेक्स्ट प्रवीण जी. Yeah, and one more question is like similar to that actually. Sir ji, someone asking क्या एक बार बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बार बार प्रोडक्ट परचेस करना जरूरी है क्या? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन. एक्चुअली एक बार बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको बार बार प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. आपको बार बार बिजनेस में एक्टिव रहना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, 200 पीवी से एक बार बिजनेस स्टार्ट किया, दैट्स इट. आपको फिर से अपने पॉकेट से पैसा लेके आके यहां पर बार बार प्रोडक्ट खरीदने का जरूरत नहीं है. दिस इज नॉट ए टॉप परचेजिंग बोनस, इट इज टॉप रिटेलिंग बोनस. ओके, तो मंथली पर्सनल टर्नओवर अपने आईडी में मिनिमम 25 पीवी हमें पर्सनल टर्नओवर दिखाना पड़ता है. द वर्ड इज टर्नओवर, इट इज नॉट परचेज. And it is not said first purchase, it's called as first order. And it is not called repurchase, it's called reorder. Okay? So अपने आईडी को एक्टिव रखना पड़ता है. इसका मतलब सिंपल सी बात है, मैंने एक दुकान खोला और उस दुकान में मिनिमम एक 25 पीवी का टर्नओवर महीने में एक बार करना होगा. अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो मिनिमम आपको एक इंसान को प्रोडक्ट मतलब बिजनेस में स्पॉन्सर करना होगा. अगर ये दोनों चीज नहीं कर पाएंगे, यू कैन नॉट बी इंडस वीवा बिजनेस. आप इंडस वीवा में एक ग्राहक बन जाइए. यू कैन नॉट बी ए पार्टनर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. Sir, there is one question here. He says like I have 11 teammates, okay, but only 2 people are active. People they come and they'll become inactive. So part-timers are not able to set priorities. For that, I have to sponsor a new person each and every time. So how should I grow from it and build my team in a bigger way? Okay, Praveen ji, ये जो question है, it is having many questions within a question. So you please let's take it one by one and answer it. Okay, I can say like this. He's building a team, but not able to not able to keep the team in the same speed. No, it's breaking. Okay, so first thing is टीम बिल्ड किया जा रहा है लेकिन कम लोग एक्टिव रहते हैं. अच्छा, एक्चुअली एक्सपेक्टेशन सही फिक्स करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. डू नॉट एक्सपेक्ट 100% पीपल विल बी एक्टिव इन योर बिजनेस. वो किसी भी फील्ड में नहीं होता है. फर्स्ट थिंग, एक्सपेक्टेशन शुड बी प्रैक्टिकल. अगर हम 10 लोगों को बिजनेस में लाया, हमें उम्मीद रखना होगा कि 2 लोग कम से कम एक्टिव होंगे. 2% और 5% मतलब एटलीस्ट 20% इन द बिगिनिंग. वो जो परसेंटेज है दैट विल स्लोली इंक्रीज. सो डोंट एक्सपेक्ट मैंने 10 लोगों को साइन अप किया कि 10 के 10 लोग भी बिजनेस में रहेंगे. नो, एक्चुअली मैक्सिमम लोग बिजनेस के अंदर आते हैं एज ए कस्टमर, एंड इनिशियली जब उनको लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, वो लोग पीछे हट जाते हैं. इट मीन्स वेरी सिंपली दैट आपके 11 लोग जो आए थे आपके साथ, उसमें से 8-9 लोग
कस्टमर्स हैं, do not expect the customers to behave like a distributor. The role of a customer, मैं एक कस्टमर हूं, मैं आई चार्ज उठाऊंगा और उसको पीऊंगा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है. I am not involving in the distribution channel. Customer mindset, that is consumer, and जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम होता है प्रोज्यूमर. कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है, प्रोज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है. सो व्हेन समबडी इज नॉट एक्टिव इन द बिजनेस, उनके ऊपर उम्मीद मत रखिए, लेकिन टच में रहिए. किसको पता, जब कोरोना आता है कंज्यूमर भी प्रोज्यूमर हो जाता है. आपको सिर्फ टच में रहना है, राइट? सो फर्स्ट थिंग. एंड प्रवीण जी, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन इन दैट? Like part-timers won't be serious. How to make Sir, them? और इससे रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन यहीं पे है, रफीकुल इस्लाम जी शायद पूछा है, सर मेरा टीम बार बार टूट जाता है, उसको जोड़ने के लिए क्या करूं सर? Okay. It's a very interesting question from Syed Iftihar sir, our retired IPS, IAS sir from retired, is a retired IAS. So Praveen ji, let me address yours. Vishnu just parked this question. Praveen ji, वो पूछ रहे थे, what was the question, Praveen ji? The part-timers. See, I have a lot of part-timers in my team, but they are not that much serious. How to make them serious in this business? Okay. See, basically, seriousness is actually coming from your purpose in your life. Your involvement, or basically, I think he is talking about the commitment. लोगों के अंदर कमिटमेंट बहुत कम है. The commitment of a person is directly connected to the dreams and vision and passion of that person. अभी for example, we have 870 people with us. इनकी कमिटमेंट लेवल बहुत बड़ा है, एंड अभी भी हमारे साथ ऐसे लोग हैं अभी बिस्तर से उठे भी नहीं. So this is clearly telling one thing: all of you are having a lot of passion. So एक बार अपने हाथ ऐसे ऊपर करिए और अपने आप को तारीफ करिए. Shabash. Okay, sabash, right? So people, those who have a bigger purpose in life, will always be serious and committed. So that's the first thing. So आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो आदमी सीरियस नहीं है, उसका रीजन एक, उसके अंदर कमिटमेंट छोटा है, बिकॉज उसको बिजनेस का डेप्थ पता नहीं है. सो कीप गिविंग देम रेगुलरली अपडेट्स, एंड मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको बिजनेस का जो डेप्थ है वो समझ में आएगा, उसके बाद वो सीरियस हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. एंड सेकेंड थिंग इज, हमेशा उनको यही मैसेज देते रहना कि आप आगे बढ़ रहे हैं. हमेशा keep showing your progress, keep showing your success, keep showing your earnings. तो धीरे 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 उनको आप सीरियस बना सकते, right? So what was the other question, Praveenji? The same person. With the same person, he says, should I keep sponsoring a new person each and every time? Yes. If you no, Praveenji, what is the question? Should I keep sponsoring? Should I keep sponsoring new person every time, each and every time? Because since our part-timers are not serious. Okay, so the answer is, it is up to you. ये आपको मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा कि आपको स्पॉन्सर करते रहना है. अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्पॉन्सर करते रहिए, बिजनेस को बढ़ाइए. एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके राइट और लेफ्ट में ऑर्गेनाइजेशन सेट होगा. आज भी मैं लोगों को स्पॉन्सर करता हूं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्पॉन्सरिंग. सो कंटिन्यू टू स्पॉन्सर as long as you want to grow. For example, जब मैं 5 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया एंड मैं अपना स्पॉन्सरिंग स्टॉप कर दिया, इट मींस दैट मैं उन लोगों के ऊपर डिपेंड हो रहा हूं. तो जब मैं कंटिन्यूअसली स्पॉन्सर करते रहूंगा राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट ऑफ लेफ्ट, मैं इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ते ही रहूंगा. एंड ऑल्सो जब कंटिन्यूअसली आप स्पॉन्सर करते रहेंगे, आपका मास्टर लाइन एक के नीचे ऐसे स्पॉन्सर करते रहेंगे, तो एंटायर लाइन
ऊपर जो लोग रहते हैं बिजनेस में, वो ट्री के अंदर सभी लोग बहुत एक्टिव रहते हैं. They may be more inspired or motivated by seeing the growth of the volume of the organization. So, आप एक recruitment machine हैं. You must become a recruitment machine. So don't forget this. Yes, Praveen ji. Sir, thank you. So that question is finished with that person, and the same other question which Vishnu has no. Sir, मेरा टीम बार बार तोड़ा जाता है, क्या करो? जब भी मैं बिल्ड करता हूँ वो तोड़ के जाता है. Okay, so team रोकने के लिए. yes. टीम अगर सही एजुकेशन के साथ नहीं बिल्ड किया गया, सही अप्रोच के साथ नहीं बिल्ड किया गया, तो टीम बिल्ड होता है, गिर जाता है. टीम गिरने का बहुत कारण हो सकता है, बट वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, आपके टीम के अंदर यू आर द फर्स्ट बैट्समैन एंड यू आर द लास्ट बैट्समैन. जब तक आप स्क्रीज में खड़े हैं, मैच खत्म नहीं होता है. तो जब तक आप स्पॉन्सर करते रहेंगे, आप जिंदा हैं. राइट? सो टीम टूटने का वजह यह हो सकता है कि देयर इज नो प्रॉपर एजुकेशन, there is no proper leadership, there is no proper instruction, and there is a lack of leadership in you. तो आपके अंदर अगर लीडरशिप की कमी है, जब मैं लीडरशिप की बात करता हूं, इट्स अबाउट बिजनेस लीडरशिप. यू आर अ ग्रेट पर्सन, बट बिजनेस के लिए जो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ही एक अच्छा बॉडी बिल्डर हूं. आई एम अ वेरी गुड बॉडी बिल्डर. But when I come to business, I should learn the business building principles. अगर मैं ये नहीं सीखूंगा, तो business will come up, it will again go down. So check. For example, in English we say, हम कहते हैं, when you win, you win. When you lose, you learn. When you win, you win. When you lose, you learn. जब भी आप गिरते हैं, काली हाथ में मत उठना. जहां पर भी आप गिरे, जब भी आप गिरे, वहां से एक सबक सीख कर उठना. इस प्रकार जब हर बार जब गिरते हैं, सबक सीखते हैं, उठते हैं, और धीरे धीरे उस सबक को आप अपनाएंगे और अपने बिजनेस में सीख लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कैसे एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन टीम को बिल्ड किया जाए. Yes, Praveen ji? Yes, sir. And Yeah. there's one very interesting question here. Vishnu had a question. Vishnu, what was that? Same question? Same question. Okay, okay. Same question था, same. Okay. Same question. Building, I mean, तोड़ के जाता है करके. And there is one more interesting question that they say, why industry is charging money for digital RTP? In VOP, it is said that all the trainings are free. Very good question. Very interesting question. अब देखिए, कल मैं कन्नड़ा आरटीपी में बात कर रहा था. देयर वाज वन मैडम का नाम है मिस दाऊद. शी इज फ्रॉम मैंगलोर. मिस दाऊद मैडम ने मुझे कहा कि सर, वीओपी और वीडियो केवाईपी जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आरटीपी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वीओपी केवाईपी वीडियो में जो बताया जाता है वो भी बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन हम लोग वहां पर ध्यान नहीं देते थे या नहीं देते हैं क्योंकि वो फ्री है. और सर, आरटीपी मैं अटेंड कर रही हूं कल और आज, और यहां पर हम लोग पे करके आए हैं, एक एक मिनट भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं. ये दाऊद मैडम ने कहा था. आई थिंक प्रवीण जी, आई विल पुट हर इन दी स्पॉटलाइट. Probably, I think what she said is every day, हर रोज मैडम ना every Thursday 7 to 8:30 वो नमाज में रहती है. So she said, मैं वेबेथॉन मैक्सिमम टाइम कुछ ना कुछ ट्राई करके अटेंड करती हूँ क्योंकि वो भी मेरा फेवरेट है. And she was telling this yesterday. I think those who are जब कल आरटीपी कन्नड़ा आरटीपी में थे उनको ये पता है. इसका मतलब यही है दोस्तों, अगर फ्री में कुछ भी दिया जाए उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है. बिल्कुल.
स्पेशली आरटीपी थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, उसमें लोगों को सीरियसली बिठाने के लिए अलग अलग ऑप्शंस जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो ऑन रखना पड़ता है, फॉर्मल ड्रेस में बैठना पड़ता है। ये दोनों चीज करने से भी लोग कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाते हैं, फोन कॉल अटेंड करते हैं, वापस आते हैं, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन जब आपने उनको चार्ज किया तो कभी बाहर नहीं जाते हैं, कभी फोन नहीं देखते हैं, सीरियसली फोकस करते हैं। एंड जिसने भी ये सवाल किया, आपको मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, आपको अगर मिलियनियर बनने के लिए 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, डोंट डू दिस बिजनेस। आप ये बिजनेस मत करिए, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आपको मतलब जो भी आपको किसी ने आपके टीम मेंबर ने पूछा होगा, उनको मैं आंसर दे रहा हूं। जो आदमी 1000 रुपीज, अरे आप देखिए, द मनी आई स्पेंट ऑन द बुक्स, ओके। और मैं अर्जुन को मिला था सिंगापुर में, एंड उस ट्रेनिंग में टोनी रॉबिन्स को सुनने के लिए इधर से आने जाने का खर्च सब कुछ अराउंड 3.5 लाख रुपीस सिर्फ 4 दिन के ट्रेनिंग के लिए मैंने स्पेंड किया। एंड अर्जुन, यू नो द कॉस्ट ऑफ द वीवीआईपी सीट, इट वाज कॉल्ड सॉलिटेयर। टोनी रॉबिन्स के प्रोग्राम में इट वाज 2.5 लाख रुपीस फॉर वन सिंगल सीट। यस सर। राइट। सो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन हो सकता है, आपकी टीम की भी हो सकता है। अगर कोई इंसान if he is not ready to invest in your own education, all the best for E quadrant and S quadrant. Never ever think about B quadrant. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. And there's other question here, sir. Whenever our distributor, they go on field and give presentation and everything, they finally do the sales closing. People, they come up with the answers telling that I don't want to do network marketing. मुझे network marketing नहीं करना है, लोगों को फंसाना काम नहीं करना है. Why? Why is this? अच्छा, मतलब लोग, फर्स्ट थिंग, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, बिफोर यू कन्विंस द वर्ल्ड, यू बी कन्विंस्ड बेटर। दुनिया को समझाने से पहले आप पहले समझो। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसमें नहीं बताया कि ये लोगों को फंसाने वाला काम है। रॉबर्ट कियोसाकी, प्रवीण जी, कैन यू रीड दिस? One second, sir. Yeah, for people who like to helping people, for people who like helping people. Right? यहां पर लोगों को मदद किया जा रहा है, किसी को फंसाया नहीं जा रहा है। अगर किसी को लगता है फंसाया जा रहा है, फर्स्ट उनको समझाओ दिस इज नॉट फंसाया जाने वाला काम। ओके, सो पॉइंट इज वेरी सिंपल। मैंने धारावी सिग्नल में एक बार में खड़ा था मुंबई में, और धारावी इज द बिगेस्ट स्लम इन एशिया। उस सिग्नल पे मैं खड़ा था व्हेन आई वाज गोइंग टू फ्रॉम एयरपोर्ट टू नवी मुंबई टू मीट हरि प्रसाद, और प्रॉब्ली आई थिंक विथ हरि प्रसाद आई वाज गोइंग। और धारावी सिग्नल में साक्षात्कार हुआ मुझे, लाइक गौतम बुद्धा, व्हाई द पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी। जब अपॉर्चुनिटीज है, जब रिच बन सकते हैं, व्हाई पीपल आर इन पॉवर्टी। तो धारावी सिग्नल में एक चीज मुझे साक्षात्कार हुआ, और वो ये है कि पब्लिक इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड। पब्लिक इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड। सो वो क्या कहता है पब्लिक, इससे कोई मायने नहीं रखता। आपको क्या लग रहा है दिल में, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो इंसान सो रहा है, उसको थोड़ा सा पानी ऐसे उसके मुंह पे आप डालेंगे ना, फेस पे, तो वो जाग जाता है। ओ सॉरी सर, मुझे नींद आ गया था। राइट? अगर कोई सोने का नाटक करता है, उसके ऊपर आप जग में लेके पूरा पानी डालो तो भी नहीं जागेगा वो।
तो जो लोग सोने के एक्टिंग कर रहे हैं, कृपया उनको छोड़ के आगे जाइए, क्योंकि करने के लिए काम बहुत है और वक्त बहुत कम है। अटक मत जाना, बटक मत जाना, लटक मत जाना, इस प्रकार के कंफ्यूज्ड लोगों के बीच आपके रास्ता मतलब आपकी राह में आगे चलिए, इस प्रकार के लोगों को भूल जाइए, राइट? क्योंकि इफ समबडी इज एक्टिंग लाइक ही नोज एवरीथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन, प्रवीण जी। Yes, yes, sir. Yes, sir. Fine. So there's other question. Somebody is asking: is selling important or building binary important? Which is the priority to grow? साइकिल में कौन सा पेडल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है? राइट वाला पेडल या लेफ्ट वाला पेडल? बोथ द पेडल्स। वेरी गुड। दिनेश झारखंड से बोल रहे हैं लाइक दिस। थैंक यू दिनेश जी, आई लव योर सिटी, माय फेवरेट हीरो कैप्टन इज देयर झारखंड में, महेंद्र सिंह धोनी। ओके, राइट। सो दोस्तों, जैसे साइकिल में दोनों, बाइसिकल में स्पेशली दोनों पेडल हमें चलाना पड़ता है, तो वैसे ही लोगों को रिक्रूट करने की जो काम जो है वो भी जारी रखना है, रिटेलिंग करने का जो काम है वो भी जारी रखना है। सो दोनों को करते करते बैलेंस में आप अपने बिजनेस को लेकर आ सकते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट विल एक्सपैंड योर बिजनेस, retailing will stabilize your business. So you have to recruit and also retail. Okay, right? And maybe you are very good in retailing. No problem. Whenever you know pedal, एक पेडल जब आप दबाते हैं, ऑटोमेटिकली दूसरा पेडल ऊपर आता है। जब आप रिटेलिंग ज्यादा करते हैं, ऑटोमेटिकली ये पेडल भी ऊपर आ जाता है, रिक्रूटमेंट वाला। और जब आप रिक्रूटमेंट ज्यादा करते हैं, ऑटोमेटिकली ये रिटेलिंग वाला पेडल भी ऊपर आता है। विच मीन्स दैट जब आप वाइब्रेंट वीवर सिस्टम के अंदर अपनी टीम को रखेंगे, जो भी मिसिंग है, जो भी कमियां हैं, उसको पूरा किया जाएगा। सो नथिंग टू वरी। ओके, गुड क्वेश्चन प्रवीण जी, आई थिंक दैट आंसर्स दैट। Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. And here there's a question actually. Mr. is asking: have a team of about 200%, Wow. but only in that 63 people are active. Is that a good ratio to see? Yes, actually 260 out of 260 is more than 25%, right, Praveen ji? Yeah. For the It's 30%. 30. 30% is super. 30% is super. Sir, you are doing excellent. Continue this. When you reach total team count of 2000, you will have 600 people and you may be in ceiling. Go ahead, sir. You are doing very good. Wonderful. Keep it up. And Yes, somebody was actually they're telling today they have taken an appointment for a person to show the business who's earning 12 lakh rupees monthly. Wow. Okay. So suggest me how to show the plan. I was thinking that he may not give time if he start business, because initially we can't generate big income. See, very good question actually. First of all, appreciate your courage. आपके अंदर जो हिम्मत है उसको मैं तारीफ करना चाहता हूं, उसकी तारीफ करना चाहता हूं। 12 लाख जो कमा रहा है उसको आप प्लान दिखाने वाले हैं, एक्सेलेंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो लोग बड़े बड़े लेवल के होते हैं, बड़े मतलब इनकम कमा रहे हैं, 12 लाख जो कमा रहा है आदमी, उसका सोच भी मैच्योर्ड सोच होगा। उसका एटीट्यूड पियोन वाला एटीट्यूड नहीं होगा, उसका एटीट्यूड एक बिजनेसमैन एंड सीईओ का एटीट्यूड होगा। सो जब आप प्लान दिखाते हैं, यूज सम रेफरेंसेस लाइक द ग्रेट इकोनॉमिस्ट कियोसाकी, और यू कैन यूज, आप ये भी यूज कर सकते हैं इंटरनेट से, राइट? सो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। सो ये सारी चीजें बताकर आप उनको साइन अप कर सकते हैं। अरे कोई भी बिजनेस, अमिताभ बच्चन इज अ सुपरस्टार इन दी बॉलीवुड, बट नई फिल्म की शुरुआत फर्स्ट टेक, एक्शन, लाइट्स कैमरा एक्शन, फर्स्ट सीन से शुरू होता है।
इसका मतलब है you may be successful businessman, but every business starts with a small step. So that person, उसको कभी नहीं लगेगा कि ये छोटी बिजनेस है, प्रॉफिट छोटा है. उसको पता है छोटा अगर होगा तो ही उसको बड़ा किया जाए. So you can go ahead, sir. All the best and proceed. Wonderful. And there's one more question. They say like our teammates, they don't take responsibilities, and whatever they will held applying for all the applying responsible for all the things, for all the problems. As if applying is a full-time worker. How to handle these kind of people? This team. Yes. First thing, basic चीजें ये आप याद रख लीजिए. Multi-level marketing is multi-level leadership. So you must build your leaders. This is the Guru Mantra what Abhilash ji gave me. Build your leaders, they will build your business. So जब आप business के अंदर development करते हैं, ऐसे लोगों को पहचानना important है जो जिम्मेदार हैं और उन लोगों के लेफ्ट राइट में बिल्ड करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाएं. ऐसे लोगों को बिल्ड मत करो जो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं, जिम्मेदार नहीं बनते हैं, क्योंकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा. और आपको लग रहा है कि आई डोंट हैव एनीबॉडी जो जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो आप खुद जिम्मेदारी सब कुछ उठाइए और इन द प्रोसेस आइडेंटिफाई द लीडर्स. जब भी आपके टीम में नए लोग आते हैं, शायद वो बॉटम में है, शायद उसको आपने स्पॉन्सर नहीं किया, चलेगा. आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी हैं, उस प्रकार के लोग आने तक इंतजार करिए और आप खुद एक लीडर बनिए. यही सोल्यूशन है उसके लिए. सो डोंट वरी अबाउट पीपल. एंड दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्रवीण जी. Yes, sir. Yeah, that was a question. And here I have one more question. He says, if any one of my team member leave the organization due to some issue, the network what he has built will continue with me or not? If you are a good upline and you are in touch with them, it will continue. True. And there was one more question. During these days in digital zamana, how to create curiosity over the phone for the new prospect? न्यू प्रोस्पेक्ट, देखिए अगर ये आपका कोल्ड कांटेक्ट है तो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बट इफ इट इज अ हॉट कांटेक्ट, सो इट्स वेरी इजी, बट फॉर कोल्ड कांटेक्ट इट इज लिटिल डिफिकल्ट, राइट? सो कन्वर्शन रेट कोल्ड कांटेक्ट में ज्यादा होता है बिकॉज द रिलेशनशिप इज देयर. सॉरी, हॉट कांटेक्ट में कन्वर्शन ज्यादा होता है बिकॉज आपकी रिलेशनशिप है उनके साथ. एंड वार्म में थोड़ा कम होता है एंड कोल्ड में बहुत ही कम होता है. सो आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए थोड़ा क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा, बिकॉज जितना आपका उनका रिलेशनशिप है उतना ज्यादा आप उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं. सो इट इज ऑलवेज गुड अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे, ज्यादा मतलब इंटरेक्शन करेंगे, सो द रिलेशनशिप विल बिकम वार्म. जब रिलेशनशिप कोल्ड से वार्म होता है और वार्म से हॉट होता है, तब आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं. डू नॉट ट्राई टू क्रिएट क्यूरियोसिटी फॉर अ स्ट्रेंजर. अभी रेलवे स्टेशन में मिला था, उस आदमी को क्यूरियोसिटी ट्राई किया तो कभी कभी वो बैकफायर हो सकता है, वो बंदा आपसे निकल जा सकता है हाथ से. तो इसीलिए द प्रोसेस इज लाइक दिस. कोल्ड कॉन्टैक्ट्स यू प्लीज मेक इट वार्म, वार्म कॉन्टैक्ट्स मेक इट हॉट. और जब सही वक्त आए उस वक्त के लिए इंतजार करना और उस वक्त आप उनको क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो पहले आप दोस्ती बढ़ाओ लोगों के साथ, एक दूसरे के मतलब जान पहचान होने दीजिए, उसके बाद यू कैन डू द क्यूरियोसिटी. ओके, गुड क्वेश्चन. आई थिंक that answers that. Yes, sir. A few minutes back, you were mentioning about one madam who attended the RTP yesterday. No, she has messaged here. She personally told her name is Ruhia, and she has attended on her brother's account name. Dawood. Okay, so that's what, and she's a co-applicant. She's there. RUHIYA.
Yes, she is very much there. I'm putting her on the spotlight. Ruhia madam, okay, she's not enabled the video. I don't know whether she doesn't want to enable the video. No problem. Ruhia madam is there with us. Yes, I think the same person whom I was talking about. She was attending with her brother's account probably. Yes, yes. Yeah, and there's one more question from Nepal. He's asking, sir, when we sponsor a new person, Mhm. often we put them on direct sponsor of our downline. Okay, And we promise to handle one leg of our downline. okay. Is it appropriate in long run? First thing, everybody must handle two lines. If you want, you can support. आप support दे सकते हैं, लेकिन दोनों साइड खुद चलाने वाले strong होते हैं. So, what's first thing? Do not educate wrong things to your team members. Second thing, if you're sponsoring also, if you're placing it in your team members organization, sponsorship आप खुद रख सकते हैं if you want. There is no problem. But if you're giving the sponsorship to somebody, make sure कि उन दोनों के बीच में रिश्ता बनाकर उन दोनों को कनेक्ट करने से ही ये काम आएगा. Right? Yes. Yes. Next question. And there's one more question, sir. They are asking like today's generation, like today's youths are more attracted towards affiliate marketing, but not having the knowledge of network marketing, which is a bigger model. How to convince them about the network marketing? Because they are into more of affiliate marketing. See, affiliate marketing is good for those people who want to be involved in that. See, today's generation is interested in faster growth. They're not interested in affiliate marketing. They're interested in faster growth, and they feel, उनको लगता है कि affiliate marketing में ज़्यादा पैसा है. But when you show that this business is also much better and bigger than affiliate marketing, with a solid proof and the potential of this industry, especially network marketing, जब digital marketing के साथ, मतलब digital platform के साथ जब network marketing किया जाए, that is e-age business, the possibility of expansion is much, much faster and bigger than affiliate marketing. Because this is very powerful system. Network marketing is you are creating 100 people like you. In affiliate marketing, that may not be possible. So, when you create 100 people and 100 people are creating 100 people, the exponential growth is activated. The leveraging is happening. Whereas in affiliate marketing, I don't think so it is possible. I'm not here to comment about affiliate marketing, but I am talking about the goodness of network marketing or community commerce. Yes, the potential is very huge. You can explain to them, but if they are behind quick money, it's up to them. So don't wait for them. Don't waste your time on them. There's one more question which is shooting again and again and again and again. He is mentioning that one friend telling again and again that he has no money even after my lot of efforts, but he's still saying he has no money. He's Pandit and said that he will give money after 1 week after doing some puja. But he understands the business. He is understanding the business, but he says he doesn't have money. Even after putting a lot of effort, it's not paid. So अगर आपके दोस्त एक पंडित है और कहता है कि 1 हफ्ते के बाद मैं पैसा दे रहा हूं, तो 1 हफ्ते के लिए वेट करिए. Yeah, and one more question: why is the percentage of success is very less in network marketing? Wow, what a beautiful question! What a beautiful question! अब कुछ टाइम के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग भूल जाते हैं. Let us get into cinema industry or Hollywood या Bollywood. कोई यहां पर है बॉलीवुड से? प्लीज हाथ ऐसे हिलाइए. Anybody with Bollywood? Anybody? Pravinji, look at the gallery. If somebody is connected to cinema industry in any way, anybody, please show me your hand. Anybody, Pravinji, in the gallery? Can you see Pravinji? Anybody? No, I'm not able to see anybody. You are not able to see? Okay, right. Our Wag sir is there from, he's not from Bollywood, but Wag sir is from Gujarat. Sir, good morning, sir.
आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट करने को ऑप्शन दिया है, यू कैन अनम्यूट सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग वाक सर, कैसे हैं आप? गुजरात से, सूरत से? सर एकदम बढ़िया। अच्छा सर, व्हाट फील्ड डू यू बिलोंग टू? Sir, I'm belong to textile industry. I'm industrialist. I'm having a manufacturing unit, and we manufacture yarn. That is ultimately raw material for making fabric. Yes, sir. You are very close to our Reliance founders. Those who are into the same textile. Those who are Vimal. You know, they were also from that field, I believe, sir. Yeah, Vimal was the brand. Correct. Yes. So polyester yarns. Yes, sir. Correct. Yes. So what, sir? Reliance is the largest manufacturer of polyester yarn now. Correct. Exactly. Same industry. Yes, sir. Exactly. So what, sir? आप बताइए हमें, पॉलिस्टर या कोई आप जो जिस फील्ड से हैं उस फील्ड में क्या 100% सक्सेसफुल लोग होते हैं? Only 3 to 5%. अच्छा, आपकी इंडस्ट्री भी ऐसे ही है सर? आपकी इंडस्ट्री में भी कुछ गड़बड़ है सर? मैं सोच रहा था नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे होता है। 3 to 5% सक्सेस है, ओनली 3 to 5%। उसमें 3 to 5% आज मेकिंग मनी, बाकी के जो रेस्ट है उसमें कुछ एक परसेंटेज बस सरवाइव कर रहे हैं, और उसके बाद में कुछ एक परसेंटेज वो जस्ट लॉस्ट कर रहे हैं और बाद में क्लोज कर देते। इंडस्ट्री बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेकार है, टेक्सटाइल में काम नहीं करना चाहिए, फिर वो दूसरी इंडस्ट्री में जाएंगे, फिर वहां वही करते, फिर तीसरी में जाएंगे। ये रेशियो नॉर्मली चलता रहता है। बट कुछ एक लोग इनोवेटिव कुछ काम करते हैं, समथिंग डिफरेंट करते हैं, दूसरे से कुछ अलग हटके और पहले कर लेते हैं, तो वो हमेशा टॉपर रहते हैं, फिर बाद में सब लोग कॉपी करना शुरू करते हैं। अच्छा, सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी 3 से 5% है। तो थैंक यू वेरी मच वाक सर। आई एम पुटिंग मिस्टर सुशील जैन ऑन द स्पॉटलाइट। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, माय गुड फ्रेंड फ्रॉम बैंगलोर। गुड मॉर्निंग सुशील जी, नमस्कार। आई एम अनम्यूटिंग यू, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सुशील जी। यस सर। थैंक यू वाक सर। एंड सुशील जी, व्हाट फील्ड डू यू बिलोंग टू? कौन से फील्ड से आप? टेक्सटाइल सर। पार्डन? Textile, same industry what works. Oh my God, you are also from textile. I thought you are a Jain. You may be into some other business. You are also into same business. अच्छा, सुशील जी, tell me 100% success होता है क्या textile industry में? Hardly 5%. Hardly 5%. Okay, so you are 100%. I mean, you are clear that it is only that much, the percentage of success. Yes. Right. So how many years of experience do you have, Sushil ji? 20 years of experience into this. 20 years of experience. Very good. Thank you Sushil ji. And anybody, अगर कोई और है जो business background से है तो हाथ ऐसे दिखाइए, किसी भी business के background से। प्रवीण जी, just look at the gallery. Anybody from business background, please show me your hand like this. अपने हाथ हिलाइए एक बार. I want to see if any businessman is there. Okay, we have Nikhil Dubey. Nikhil Dubey from Nikhil Dubey. Praveen ji, sorry, I put somebody on the spotlight. Nikhil ji, can you? Yes. You are an optician. Yes sir. अच्छा, आप बताइए सर, परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन योर इंडस्ट्री जो टॉप में जाते हैं। सर ऑलमोस्ट 3 to 5% सर। अच्छा, 3 to 5%। आपका भी यही प्रॉब्लम है सर? आपकी इंडस्ट्री में भी कुछ गड़बड़ चल रहा है सर? सर ऑफ कोर्स एंड सर ने बोला, सुशील सर ने भी बोला और वाक सर ने भी बोला कि समवन वो छोड़ देते हैं कुछ दिनों में और कुछ साल में, और फिर किस और चीजों में ट्राई करते हैं, और इसमें वही सक्सेस करते हैं जो रेगुलरली रहते हैं। तो ऐसा ही हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ है। इवन डॉक्टर्स, मैं सर्जरी भी करवाता हूँ सर, एंड डॉक्टर भी आज उनके पैसे में भी ऐसा ही कुछ है, हॉस्पिटल्स का। ओके, थैंक यू निखिल जी। प्रवीण जी, आप किसी को स्पॉटलाइट पे लगाने वाले थे? आस्था मैडम, आस्था त्रिवेदी मैडम। अच्छा, आस्था मैडम बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो उनको भी लगाइए प्लीज स्पॉटलाइट पे लगाइए उनको प्लीज। यस, लाइए आस्था मैडम को। आस्था मैडम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कहां पर हैं आप? अच्छा, यस आस्था मैडम, गुड मॉर्निंग आस्था मैडम, नमस्कार। या मैडम, अनम्यूट कीजिए अभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैडम, आप किस फील्ड से बिलोंग करते थे इससे पहले? सर बुटीक। अच्छा, बुटीक। अच्छा, बुटीक। वाओ, वेरी गुड। स्पेशली ऑल द women here, they may be very interested to take consultancy from Astha madam because boutique is very interesting thing for all the ladies. Okay, मैडम हमें बताइए कितने % लोग उसमें सफल हो पाते हैं? 3 to 5%। 3 to 5%। बाकी लोग तो आते हैं, देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ समय के बाद चले जाते हैं, राइट? यस सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर इनपुट। एंड दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। आप दुनिया में कोई ऐसी फील्ड या ऐसा अपॉर्चुनिटी लेकर आइए
जिसके अंदर 100% सक्सेस मिलता है, तो हम सब लोग उसके अंदर चले जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया के लिए वही चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को सक्सेसफुल बनाया जाए। अकॉर्डिंग टू मी, I have reached almost, I have traveled close to 40 countries. I have been in this, business for so many years. I've been in this industry. मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, right? मुझे नहीं लगता है there is any other business. Even I was reading this book, let me understand. मेरे अंदर अगर विजन की कमी है, तो इन लोगों के अंदर देखते हैं, तो जब मैं इस प्रकार के लोगों को भी पढ़ता हूं, तो मुझे एक ही चीज समझ में आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली इंडस्ट्री इस दुनिया के अंदर विच कैन गिव मैक्सिमम सपोर्ट टू अ पर्सन। एक इंसान को मैक्सिमम सपोर्ट सक्सेसफुल होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से कोई और इंडस्ट्री दे नहीं सकती। दिस इज द गारंटी, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर, आस्था मैडम इज इनटू बुटीक, वाक सर इज इनटू टेक्सटाइल, एंड वी हैव मिस्टर सुशील जैन। सो एवरीबडी कोई भी एंटरप्रेन्योर जब आज जाके अगर किराना शॉप भी खोलना पड़ता है ना, वो खुद अपनी कैपेसिटी, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम और अपने एबिलिटी पर डिपेंड होता है। अरे यहां पर इट्स सच ए ब्यूटीफुल सिस्टम। अंदर आते ही आपको स्वीकार करने के लिए 5 अपलाइन खड़े हैं। वेलकम सर, स्वागत हो। देखो, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर कियोसाकी हमें कहते हैं, इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे आपको आमिर बनने के लिए, क्योंकि आमिर बनाने के लिए, क्योंकि आप अगर आमिर बनेंगे तब जाके कंपनी का भी बिजनेस बढ़ेगा। अरे कितना बढ़िया सिस्टम है। एंड अपलाइन सभी लोग आपके सक्सेस के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट देने के लिए। ये कहीं और किसी फील्ड में बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं, आम आदमी, कॉमन मैन को बिजनेसमैन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी के अंदर बिजनेस का सोच नहीं होता। बिजनेस की जो चैलेंजेस है, बिजनेस के अंदर जो डायनामिक्स है, वो कभी पता नहीं चलता आम इंसान को। लेकिन एक बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल वाक सर को देखिए, मैं तो उनको हर वेबिनार में देखता हूं। व्हाई इज ही सो सीरियस? अरे उनको पता है बाहर की दुनिया में अगर 100 रुपया प्रॉफिट देखना पड़ता है ना, कितना घूमना फिरना पड़ता है। एक बिजनेस चलाने में कितने हेडेक्स होते हैं, कितने ओवरहेड्स होते हैं। सो ही नोज द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी, ही डज मल्टीपल बिजनेसेस, $1 बिलियन ऑफ बिजनेस। वो इसलिए कहते हैं इस बुक के अंदर, अरे नेटवर्क मार्केटिंग इतना बढ़िया सिस्टम है कि सारी प्रॉब्लम्स जो एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनने के लिए जो सीखना पड़ता है और जो लॉसेस उसको उठाना पड़ता है, ये सब कुछ अवॉइड करके डायरेक्टली आप ई क्वाड्रेंट, एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में जाने का हाईवे टू योर सक्सेस इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. So that's what I'm telling you, my dear friends. So this is the industry which can give maximum support. And इसके अंदर I think 3 to 5% success itself is great. Yeah. And ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये लोगों का प्रॉब्लम है. मैं जिम में गया था, वहां पर जिम का ओनर जो है उससे बात कर रहा था. वो कहता है कि सर जनवरी में जो लोग रजिस्टर करते हैं फर्स्ट मंथ में, अगर 500 लोगों ने रजिस्टर किया, एनुअल पैकेज भी उठाया, दिसंबर तक आप देखेंगे तो सिर्फ 3 से 5% लोग जिम आते हैं, बाकी सब लोग गिव अप कर देते हैं. अच्छा, तब मुझे लगा ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये लोगों की प्रॉब्लम है. और दोस्तों इसी के वजह से लेफ्ट क्वाड्रेंट में 95% लोग रहते हैं और राइट क्वाड्रेंट में राइट क्वाड्रेंट में ओनली 3 to 5% लोग रहते हैं. This is a clear economics, clear mathematics which is talking here. So जो लोग कमिटमेंट दे पाते हैं, सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, किसी भी फील्ड में. Right? So that is it. I think 8 o'clock, Praveen ji, we have to allow people, those who want to leave, जो लोग अभी, those who want to quit the meeting, all the best. Have a fantastic day, and we will answer 1 or 2 questions, and we will wind it up, Praveen ji. Yes, this was an amazing answer overall. For inter question. Around 10 lakh people on an average, appearing in the UPSC every year, sir. Around 10 lakh average in UPSC.
अच्छा, UPSC exam. इन्वेस्टर्स सर एवरी 10 लोग जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, वो भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट लेते हैं. एवरी 10 अगर एवरेज देखें तो, जो बहुत करोड़ों हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 10 लाख में से सर 700 750 लोग यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं एवरी ईयर. यू कैन सी दैट डेटा. That data is applicable every year, you know. And विशाल जी, आप भी एक बिजनेसमैन थे, तो आपका भी यही एक्सपीरियंस होगा कि परसेंटेज ऑफ सक्सेस जो है, इट इज वेरी 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 मिनिमल. वेरी लो सर, वेरी लो. It is low का मतलब it is 3 to 5% only in every field, because winners are only 3 to 5%. They are the leaders, those who are the class. Their mass will follow the class. It happens in every field, right? Even in education, sir, 1.5 crore students come out every year, but hardly 5 lakh people get jobs. Not even that. Exactly. In education, the same percentage works. Thank you, Arjun and Vishal, for adding more clarity on that and giving a thumbs up for that. Right? Okay. Now over to Praveen ji for the next question. उसके बाद हम लोग विदा लेते हैं आज के लिए. Right? There is one more question, very interesting question. He's saying how to handle people who try to put obstacles and try to put an end to our business due to jealousy. I don't know whether it is the from inside or from outside. But one question is this much. अच्छा. देखिए, मैं अपनी लाइफ में जो तरीका अपनाया, मैं आपको वो बताता हूं. ओके? नेगेटिव लोगों को हैंडल करने का तरीका मैं आपको बताता हूं. कान खोल के सुन लीजिए. द बेस्ट वे टू हैंडल नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोगों को संभालने का, हैंडल करने का बेस्ट तरीका है, डू नॉट हैंडल देम. डू नॉट हैंडल देम. हैंडल मत करो, उनसे कृपया दूर चले जाओ. दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बिलियंस ऑफ लोग रहते हैं इंडिया में, लोगों की कोई कमी नहीं है. अगर इंडिया खत्म हो गया तो चाइना में चले जाएंगे हम लोग, डोंट वरी, नहीं तो अफ्रीका में जाएंगे. बट डू नॉट, अटक मत जाना. आपको रास्ते में बीच में इस प्रकार के बहुत सारे लोग मिलेंगे, कैरेक्टर सैंपल्स मिलेंगे आपको, राइट? आप उनको दोनों हाथ जोड़ के बोल दीजिए, भाई साहब मेरे बड़े बड़े सपने हैं, मेरे बड़े बड़े मतलब सोच है, अपनी फ्यूचर को लेके बड़ा विजन है भाई. 3-4 साल तक मैं काफी बिजी हूं. तुम्हारा जो भी नाटक है, नौटंकी है, इन चीजों से मैं उसके बाद डील करता हूं. तब तक विराम लेता हूं. राइट? लीव देम. भूल जाइए इन लोगों को. अगर कोई बहुत परेशान कर रहा है आपको, मोबाइल उठाओ, राइट क्लिक, ब्लॉक. दैट्स इट. 3-4 साल के बाद जब आप डायमंड, ब्लैक डायमंड बनेंगे, तब फोन घुमाना, अरे भाई किधर हो, चाय पियेंगे आज, अच्छा टाइम है. तब तक प्लीज लीव देम. डोंट गेट स्टक. अरे देखो, फॉर एग्जाम्पल विशाल जी रहते हैं राजौरी गार्डन में. राजौरी गार्डन में एक क्या बोलते हैं हम लोग, कोकोनट ट्री हिंदी में क्या बोलते हैं, नारियल का पेड़ है. नारियल का पेड़ है. विशाल जी, नारियल पेड़ जो राजौरी गार्डन में है, उसका जन्म होता है राजौरी गार्डन में, और उसका मरण वो खत्म भी होता है उधर ही 50 साल के बाद. यस सर. क्योंकि वो एक पेड़ है, वो हिल नहीं सकता है वहां से. वहीं पर जन्म, वहीं पर खत्म. अरे हम इंसान हैं भाई, 2 पांव, मतलब भगवान ने 2 पैर दिया हमें, राइट? इसे इस्तेमाल करके अगर यहां पर प्रॉब्लम है तो चलते 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 इधर आ सकते हैं. अगर यहां पर प्रॉब्लम है, चलते 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 कहीं और जा सकते हैं. मैंने फेसबुक पे कोट लगाया था, यू आर नॉट अ ट्री टू बी स्टक इन योर लाइफ. यू आर नॉट अ ट्री टू बी स्टक इन योर लाइफ. यू कैन मूव. आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं. सो डू नॉट गेट स्टक विथ सच पीपल. और मैं आपको बताऊंगा, हर तरफ इस प्रकार के कैरेक्टर सैंपल्स आपको मिलेंगे ही, जो आपको बहुत परेशान करेंगे. और थैंक यू बोलना इन लोगों को, क्योंकि आज अगर सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर किसी ने बनाया, उसमें योगदान है उनके भाई अजित तेंदुलकर, उसके बाद है आचरेकर जी, उनके जो कोच हैं, और उससे ज्यादा योगदान है वो खतरनाक बॉलर्स, शोएब अख्तर, ब्रेट ली,
right? Henry Olongo, all these kind of dangerous deadly bowlers, जो fast bowlers उनको bowl किया ना, उन्होंने master blaster बनाया सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि जब इस प्रकार के डेंजरस बॉलर्स को फेस करते हैं ना, तब आप भी डेंजरस बैट्समैन बन जाते हैं, राइट? सो टेल थैंक्स टू ऑल दोस पीपल हु आर ट्रबलिंग यू, मेकिंग नेगेटिव यू. आपको जितने लोग नेगेटिव बनाते हैं सबको प्रणाम करना. थैंक यू वेरी मच. आपने मुझे जिंदगी में बहुत ही मजबूत बनने में बहुत बड़ा योगदान आपका है, राइट? और नेगेटिव लोगों से दूर चले जाइए. हाँ, और उनको बताना सिर्फ 3 साल भाई, 3 साल मुझे टाइम दे देना. 1000 डेज का एक प्रोसेस के अंदर चला गया हूं. अब मैं इधर उधर देख नहीं पाता हूं, एक ही चीज पर मेरा फोकस है. 3 साल के बाद मैं अपना मर्सिडीज में आऊंगा, तब हम पूरी दिल्ली घूम के गुड़गांव जाएंगे, चाय पिएंगे, बढ़िया मजाक मतलब टाइम स्पेंड करेंगे साथ. तब तक मेरे पास टाइम नहीं है, राइट? सो दिस इज द आंसर फॉर दैट. एंड आई थिंक प्रवीण जी लास्ट वन क्वेश्चन, बिकॉज 800 लोग हमारे साथ हैं, तो शायद इसी उम्मीद के साथ में और भी कुछ मिले इनको आज के वेबिनार में. तो इन लोगों के लिए और एक सवाल इन आपकी तरफ से. Yes, sir. Few of them want to know about ideal distributor also. So if I can give you a last question and then you can explain about that and we can wind up. See, देखिए आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर इज अ टेक्निकल क्वेश्चन. इसको आपके अपलाइन रूबी या एमरल्ड आपको समझाएंगे और एक जूम कॉल भी होगा उसके बारे में. So we will split that question. Okay. Let's go into a common question which can help maximum people. Yeah, one question is that actually, sir, there are few people. There are complaints coming that people are selling product at the lesser than MRP. That is a kind of a technical question. Our legal department is handling that. हमारे legal department का काम चल रहा है उसके खिलाफ. Don't worry, we already won the case against Amazon also. Amazon, so nothing to worry. So we will be putting an end for all this. देखिए इंडिया में हेलमेट पहनना जरूरी है in most of the cities. तो भी लोग हेलमेट के बिना ट्रैवल करते हैं. सो इन इंडिया द लॉ इज देयर बट लॉ ब्रेकर्स आर आल्सो देयर. सो डोंट वरी, जो भी वो लोग कर रहे हैं वो कानून के खिलाफ है, इंडस विवा के खिलाफ है, वो लोग पकड़े जाएंगे. डोंट वरी, राइट? ओके, लेट्स फोकस मोर ऑन पॉजिटिव थिंग्स एंड सच थिंग्स द कंपनी विल हैंडल. Yeah, and the last question is like somebody's mentioned how to convince people who are already failed in network marketing. अच्छा, very good. They were previously in network marketing, they have failed, and again I'm going and giving plan presentation, and how to convince him? आप उनको कन्विंस करने का आंसर भी आपने खुद दे दिया कि ऑलरेडी वो फेल्यूर है, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क एक्सपीरियंस लोग होते हैं. एक्चुअली मैं आपको एक सच बता रहा हूं आज. इस चीज को हमेशा जब आप नेटवर्क के सामने जाते हैं, एक्सपीरियंस नेटवर्कर्स जो लोग 15 साल 18 साल 20 साल राइट, इस प्रकार के एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनके सामने जब जाते हैं ना, कीप दिस पॉइंट अपने दिमाग में ये हमेशा रखना. अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को ज्ञान या मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, साक्षात्कार हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग अगर किसी को समझ में आ गया, वो इंडस वीवा को ढूंढते आ जाएंगे. अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इंडिया इज नोन फॉर स्पिरिचुअलिटी, राइट? दुनिया में कोई भी इंसान स्पिरिचुअली अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में इंडिया में आ जाते हैं. ये आप लोगों को पता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्पिरिचुअल theories and spiritual teachings from this great country India. And especially इंडिया में जो लोग रहते हैं, उनको जब वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, वो कैलाश जाते हैं या they go to the Mount Everest or the Himalayas, to do meditation and things like that. So उसी प्रकार जब किसी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ जाता है, तो वो इंडस वीवा के तलाश में रहेगा, क्योंकि इंडस वीवा ही एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटियर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी चीज चाहिए वो है, राइट? जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जानता है, वो शायद इंडस वीवा को इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर किसी के अंदर थोड़ा भी समझ है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, देखते ही वो उसको पता चलेगा और वो आपको बताएगा भी कि सर आप तो बेहतरीन कंपनी में हैं, राइट? सो डोंट वरी अबाउट कन्विंसिंग एनीबडी, स्पेशली एक्सपीरियंस लोग अगर होंगे तो कन्विंसिंग बहुत आसान है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं डॉक्टर के सामने बैठता हूं
आईपल्स बेचना या आईपल्स बेचने की बात छोड़ दीजिए, इसके बारे में बताना बहुत इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने प्रवीण जी हैं, डॉक्टर हैं, तो जब मैं आईपल्स उनके सामने रखूंगा, बोलूंगा डॉक्टर साहब जैसे आप जानते हैं इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, और जैसे आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे आप जानते हैं इम्यून सिस्टम के लिए एंटीऑक्सीडेंट एंड दिस काइंड ऑफ अ ब्लेंड इज वेरी गुड, और जैसे आप जानते हैं दिस इज अ सुपर ब्रांड बिकॉज $50 मिलियन का सेल्स हो गया, जैसे आप जानते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स भी इसके ऊपर कंडक्ट किया गया है, और जैसे आप जानते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब प्रोडक्ट इज सेफ फॉर कंजम्पशन, और जैसे आप जानते हैं इंडिया के अंदर हार्ट अटैक्स और हार्ट रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ज्यादा फैल रहा है, और जैसे आप जानते हैं उसके लिए इस प्रकार का प्रोडक्ट बहुत इजीली मतलब हमें देना पड़ता है। मतलब जैसे जब प्रवीण जी डॉक्टर होते हैं, मुझे एंटीऑक्सीडेंट का स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं है, ANTIOXIDANTS, बिकॉज अरे सामने जो बंदा बैठा है वो क्वालिफाइड है, और जब आपके सामने नेटवर्कर आते हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है इंडस विवा को जानने के लिए, पहचानने के लिए, लेकिन माने या ना माने वो उनके ईगो पर डिपेंड होता है। लेकिन क्या होता है ना, एलन सर ने मुझे बताया, एलन सर हमारे जो किंग सर्कल में आते हैं हमारे कंपनी में, उन्होंने मुझे 15 साल पहले बताया था, प्रेम तेरे पॉकेट में या तो तू पैसा रख सकता है, राइट, पैसा है, या तू ईगो रख सकता है। मैंने कहा भाई साहब बचपन से खाली पड़ा है पॉकेट अब हमें पैसा चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो उसी दिन मैंने अपना ईगो निकाल के साइड पे टेबल पे रख दिया। पता नहीं उसी ऑडिटोरियम में पड़ा है मेरा ईगो अभी भी, लेकिन उसके बाद करोड़ों पैसे मेरे पॉकेट में आ गए। तो अगर कोई इंसान अपनी स्मार्टनेस दिखाने के लिए कहता कि मैं इंडस विवा नहीं चाहता हूं, तो वो उसकी उसकी नसीब में शायद इंडस विवा नहीं। तो अगर कोई थोड़ा भी, मैं क्या बोलता हूं, वो जो हिंदी में बोलते हैं ना, ये KKAL, इसका मतलब क्या होता है अगर किसी के अंदर वो आ गया तो 100% वो इंडस विवा को जरूर दोनों हाथों को जोड़ के वो स्वीकार करेंगे। सो दैट इज व्हाट इज द फैक्ट, राइट? सो प्रवीण जी, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी से अलविदा। Sorry, last question is like, okay, if prospect is not ready to purchase 200 PV or 100 PV, but ready to use one product of 25 PV, should I register in his ID or keep him as a customer? This is the last question. अगर कोई 25 PV में आते हैं तो कम से कम उनको पहले आप एक कस्टमर बना के रखना अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई जेन्युइन है, जेन्युइन का मतलब इफ somebody, प्रवीण जी, कैन यू सी माय वीडियो? Yet to come, sir. My video is not visible? Your video, yeah. Yeah. Visible. Okay. So देखिए, for example, अगर कोई कहता है, the question is that if somebody is ready with 25 PV, what to do? अब देखिए 25 PV recruitment I do not encourage. रीजन यही है, मेरे एक अच्छे दोस्त हैं जो प्रशांत नाम के मुंबई में रहते हैं, ही इज अ गुड ट्रेनर, माय गुड फ्रेंड प्रशांत। उन्होंने कभी एक बार स्टेज पे ऐसे कहा था, एक गधा कभी घोड़े को जन्म नहीं देता है। इसका मतलब है, उन्होंने मुझे ये कहा कि 25 PV वाला कभी 100 PV वाला या 200 PV वाला जो है उसको साइन अप नहीं कर पाता। मतलब ये मेरी कोट नहीं है, उनकी कोट है, प्रशांत सरन जो मुंबई में रहते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तब से मैं 25 PV वालों को बोल दिया, भाई साहब आप दरवाजे के बाहर रहना, आप मेरे कस्टमर हैं। आप अगर मेरे टीम के अंदर आना चाहते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा बेसिक मजल होना चाहिए। 100 PV कम से कम करो भाई, एटलीस्ट 200 PV करो। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड 200 PV, यू शुड नॉट थिंक अबाउट डूइंग बिजनेस। ये मेरा फिलॉसफी है। सी, चैरिटी इज डिफरेंट, रिलेशनशिप इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट। कृपया तीनों चीजों को मिक्स मत करो। कुछ लोगों की दिल ना बहुत सॉफ्ट रहता है। मैं चाहता हूं कि इंडिया के सारे परिवार इंडस विवा में आ जाए, नहीं चाहिए वी डोंट वांट, राइट? और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं चाहता हूं इंडिया से बहुत सारे परिवार से गरीबी हटा। अरे आप चाहते हैं तो नहीं होगा, उसको चाहना पड़ेगा। वो जो बंदा है उस घर के अंदर, उसके दिमाग में आना पड़ेगा कि मेरे घर मैं गरीब नहीं बनूं, मेरे परिवार को मैं अमीर बनाऊं।
तो इसीलिए डू नॉट कंफ्यूज विथ चैरिटी एंड बिजनेस। मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको 200 पीवी बहुत बड़ा लगता है। वो पूछते हैं प्रेम तेरा बिजनेस, मैं बोलता हूं 25,000 और एक लैपटॉप जब तक रेडी नहीं है मुझे फोन मत करना। वो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं उनको बिजनेस में नहीं लेता हूं। अरे यार, जब कोई बिजनेस में आता है तो इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन, राइट? सो 25 पीवी वालों को आप बोलिए, देखो भाई एक काम करना, 25 पीवी का पैसा तेरे पास है ना, मैं तुझे एक प्रोडक्ट देता हूं, वो पैसा लीजिए अपने पास रखिए, उसको एक बॉटल दीजिए, उसको जाके इसको रिटेल करके आने दो, तो फिर उसका आईडी जो है 50 पीवी में आपके उसको 50 पीवी अपग्रेड हो सकता है, और उस प्रोडक्ट को बेच के आने के बाद 100 पीवी होता है। जब उसका मिनिमम 100 पीवी का पैसा इकट्ठा होता है तब जाके लॉग इन करना। उसको आपने जिंदगी का एक सबक सिखा दिया कि आगे 25 पीवी वाला कोई आएगा उसको कैसे 100 पीवी में कन्वर्ट किया है, राइट? सो डू नॉट एंटरटेन पीपल विथ 25 पीवी, लेट देम स्टार्ट विथ मिनिमम 200 पीवी और एटलीस्ट 100 पीवी एंड देन अपग्रेड टू 100 पीवी बाय रिटेलिंग इट, ओके? क्योंकि ये 200 पीवी वाला जो एटीट्यूड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? Right, Praveen ji. So with that, I think we have come to the end. Any other questions mostly coming? There are coming a lot of questions, but I think it's about US business also. That they can attend US program and understand Monday morning, 7 a.m. And about some other technical questions like about courier and all those things. I think business. About business only that much, sir. That much, wonderful. Okay, so दोस्तों आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है और हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे आज की नेशनल एंथम के लिए। एंड प्लीज स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम एवरीबॉडी, एंड वी विल प्ले द नेशनल एंथम नाउ। Praveen ji, can you see the national anthem video? Yes, sir. Yes. अच्छा, stand up. बोलो भारत माता की जय। मैं सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा, आप सभी